Today we are going to understand a small concept from your chapter Investment Accounting. This chapter is a part of your CA Intermediate course. To start with, let's first understand what does an investment mean. So, investment is an asset which is held by an enterprise with the primary intention to earn income. So it is an asset which is held with the following intentions. That is to earn dividend, or it may be to earn interest, to earn rentals, or to earn capital appreciations, or it can be other form of income. So, whenever an enterprise is holding an asset, okay, and the purpose of that asset is to earn either dividend, that is, you will earn dividend when you have an investment in shares. Okay, so you invest in shares with the motive to earn dividend, or it can be to earn interest. It can be fixed interest, debentures, bonds, etc. To earn rentals. For this purpose, you would have made investment in properties. To earn capital appreciation. To earn capital appreciation means it is not necessary that you are going to get incomes in the form of dividend, rentals, or interest. It is simply that you will hold that property, and after a period of time, the value of that asset itself will increase. Okay, for example, you took a share for ₹100. Your intention was not to earn dividend. If the company announces dividend, it is good, but your primary purpose to buy those share was because you were hoping that the price of that share in the market would increase. Okay, so you bought it at 100 with the expectation that when you would be selling it, you would be selling it at a price of more than 100. This is known as capital appreciation. So generally companies would invest, or the organizations would invest in shares or properties to earn capital appreciation. Okay, so are we clear? What are investments? Investments are those assets which are held by enterprises to earn dividend, to earn interest, to earn rentals, or for capital appreciation. Clear? Now let's go to another part. All these investments can be classified into two categories. Okay, so I can classify investments into two categories. Okay, now this classification of investments I am doing on the basis of nature of income which I earn from these investments. Okay, so this classification is on the basis of nature of income. So some investments would be fixed income bearing, and some investments can be variable income bearing. Okay, now let's understand what does this mean. अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट पे एवरी पीरियड आपको सेम रिटर्न मिलने वाला है, फिक्स्ड रिटर्न मिलने वाला है, देन सच इन्वेस्टमेंट्स वुड बी कॉल्ड एज फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स. लेट्स टेक एग्जांपल से डिबेंचर्स. अगर मैंने इन्वेस्ट किया है डिबेंचर्स में,
डिबेंचर्स में व्हेन आई इन्वेस्ट मुझे रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. नाउ द परसेंटेज ऑफ दैट इंटरेस्ट इज फिक्स्ड. लेट्स से इट इज 10% डिबेंचर्स. सो मुझे पता है कि एज अ रिटर्न फॉर दिस इन्वेस्टमेंट, if I make or if I held this debentures for a period of 1 year, every year I will get a return at a fixed rate, that is 10%. So जब भी आपको पता है कि कोई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न फिक्स्ड है, आप बराबर से प्रेडिक्ट कर सकते हो या यू नो कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है और वो रिटर्न हर पीरियड पे फिक्स्ड है, दोज आर फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स. सो हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं. Debentures, bonds, fixed deposits, right? Now there would also be some investments for which we do not know और for which the कि हर पीरियड पे रिटर्न कितना होगा वो रिटर्न वेरी करता है. हम जैसे डिबेंचर के केस में बता सकते हैं कि हर पीरियड हमें रिटर्न मिलने वाला है एट द रेट ऑफ 10%. There are some investments for which we know that we will get return. However, we are not sure because this return may vary. वो return fix होता नहीं है. So, those would be called as variable income bearing investments. Example is equity shares. Okay. जैसे अगर आपके पास कोई कंपनी के इक्विटी शेयर्स है, the return will be in the form of dividend. अब you don't know in one particular year company might declare dividend, in the next year it might not declare dividend and the rate of dividend may also vary. So here I cannot predict कि ये इन्वेस्टमेंट पे हर साल मेरा रिटर्न कितना होगा, क्योंकि वो वेरी करता है. कभी डिविडेंड अनाउंस होगा, नहीं होगा, कभी ज्यादा रेट पे होगा, कभी कम रेट पे होगा. सो अगर आपके पास ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न वेरी होता है, इट फ्लक्चुएट्स, दैट वुड बी नोन एज वेरिएबल इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स. सो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिसका रिटर्न फिक्स है, यू नो व्हाट द रिटर्न वुड बी, दोज वुड बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स, and the ones on which the return is going to fluctuate and vary, those would be variable income bearing investments, right? So now further in this part we are going to understand how to do accounting for वेरिएबल फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स. सो अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो जो फिक्स्ड इनकम बेरिंग है, तो उसका अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे. एंड वी आर गोइंग टू लर्न अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर. मीन्स जो बंदा वो इन्वेस्टमेंट खरीद रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट खरीद रही है, वो अपने बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करेंगे, विल नाउ अंडरस्टैंड इट. ओके. Let's understand this by way of an example. Suppose there is a person A. ठीक है. He purchases debentures, a single debenture. So he purchased one debenture. The value of that debenture is rupees 100. Okay. And that debenture is, let's say the return on that debenture is 10%. And he has purchased only one debenture. Okay, he purchases this debenture as on 1st April, say 2017. Okay, so now क्या किया है ये A बंदे ने, उसने डिबेंचर खरीदा है, एक डिबेंचर खरीदा है. वो डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, ₹100. वो डिबेंचर पे उसे इंटरेस्ट मिलने वाला है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. ओके. वन मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इज the interest is going to be paid half yearly. मतलब पूरे साल पे इंटरेस्ट मिलेगा 10% पे, लेकिन इंटरेस्ट पे होगा 2 पार्ट्स में, that is after 6 months. So your interest would first be paid in the month of September and then in the month of March. Is this clear? Okay. Now what happens is, this person A buys the debenture,
he keeps the debenture with himself. अब इसके बाद क्या होगा, ऑन 31st सितंबर, मतलब 6 महीने बाद, दैट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने बाद उसे ये डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा. ओके, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उसका डिबेंचर 100 रुपीज का है, इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम, एंड interest he is going to receive interest for 6 months. This is going to be 5 rupees. Clear? So how 5? Right? So 6 महीने जब वो डिबेंचर में अपने 100 रुपए 6 महीने के लिए लगा के रखता है, उसे इंटरेस्ट करके कितना मिलने वाला है, 5 rupees. Okay, this happens in the month of September. Now what happens is, furthermore, after 3 months, let's say on 31st December, after October, November, December, that is after 3 months, A decides that he wants to sell off this debenture. उसको ये डिबेंचर क्या करना है, बेच देना है 3 महीने बाद. अब there is a person known as B who is interested in buying this debenture. B को ये डिबेंचर खरीदना है. अब आप बताओ, अगर आप ए रहोगे तो आप बी से कौन सी चीजें वसूल करोगे. एक तो आपने खुद ने वो डिबेंचर में 100 रुपीज डाले थे, तो आपको वो 100 रुपीज रिटर्न चाहिए. ठीक है. दूसरा आप क्या लोगे, अगर आप देखोगे तो आपको इंटरेस्ट मिला है वो डिबेंचर पे सितंबर पे. ठीक है. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके पैसे वो डिबेंचर में इन्वेस्टेड थे, लेकिन कंपनी की पॉलिसी क्या होगी, कंपनी आपको जिसके डिबेंचर आपने खरीदे हैं वो कंपनी अभी डायरेक्टली ए को इंटरेस्ट कब देगी, इन द मंथ ऑफ मार्च, आफ्टर 6 months. राइट. लेकिन ए को 31st दिसंबर को ही बी को ये डिबेंचर बेच देना है. तो ए क्या सोचेगा, मुझे एक तो मेरे डिबेंचर के 100 रुपए पूरे फिर से चाहिए, और दूसरी चीज, ये जो 3 महीने के लिए मैंने मेरे पैसे इन्वेस्टेड रखे हैं या डिबेंचर पे, वो 3 महीने का इंटरेस्ट भी मुझे बी से चाहिए. राइट. सो नाउ बी विल हैव टू पे ₹100 प्लस he will also have to pay interest for 3 months if he has to buy debenture from A. क्लियर. अब चलो अज्यूम करते हैं बी ने ये खरीद लिया डिबेंचर. सो नाउ क्या होता है, जब बी ए से डिबेंचर खरीदता है तो ये चीज एक्सप्रेस करने के 2 तरीके होते हैं. एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट. ओके. अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है दैट बी परचेस्ड डिबेंचर फ्रॉम ए फॉर ₹100 एक्स इंटरेस्ट, इसका मतलब है बी ने ए से डिबेंचर खरीदा कितने रुपए में, 100 रुपए में. ओके. लेकिन इट इज एक्स इंटरेस्ट. एक्स इंटरेस्ट मतलब ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट बी ने ए को देना है वो ये 100 रुपए में इंक्लूडेड नहीं है, वो एडेड देगा, वो ऊपर से वो 3 महीने का इंटरेस्ट देगा. सो एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्स इंटरेस्ट प्राइस डज नॉट इंक्लूड द इंटरेस्ट विच बी हैज टू पे टू ए. इट इज ओनली द प्राइस विच इज पेड टू परचेज दैट एसेट. सो व्हेन आई से एक्स इंटरेस्ट ₹100, इसका मतलब बी ने 100 रुपए दिए हैं सिर्फ वो डिबेंचर खरीदने के लिए. जो इंटरेस्ट उसे ए को देना है वो ऊपर से देगा, वो दैट वुड बी एडिशनल. सो ही विल पे 100 फॉर डिबेंचर्स एंड एडिशनल इंटरेस्ट. अब वो इंटरेस्ट कितने महीने का देने वाला है, 3 महीने का. सो लेट्स कैलकुलेट वो कितना होगा. ही विल हैव टू पे 100 into 10%. ओके, आई विल कैलकुलेट हियर. 100 into 10% into 3 divided by 12, which will be 2.5.
उसे सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट देना है, क्योंकि ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है उस पे उसका कोई अधिकार नहीं है। वो डिबेंचर में पैसे लगाएगा 31 दिसंबर से। सो 31 दिसंबर से आगे का जो इंटरेस्ट है उस पे उसका अधिकार है, लेकिन ये 3 महीने का इंटरेस्ट पे उसका कोई हक नहीं है, इसलिए वो इंटरेस्ट उसे ए को देना पड़ेगा। क्लियर? नाउ लेट्स सी, वी आर सपोज टू सी हियर अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ बी। ओके, सो हम क्या देख रहे हैं, जब कोई इन्वेस्टर खरीदता है फिक्स्ड इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट तो उसके बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगा। सो बी के बुक्स में इस केस में अकाउंटिंग क्या होगा, बी ने क्या खरीदा है, डिबेंचर। डिबेंचर इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, इट इज एन एसेट फॉर बी, इट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। सो बी रिकॉर्ड करेगा डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ओके, अब वो कितने पे रिकॉर्ड करेगा ये, ऑलवेज अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर एट कॉस्ट। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट जब बी के बुक्स में रिकॉर्ड होगी तो वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी। अब देखते हैं बी के लिए कॉस्ट कितना है। बी पे करने वाला है डिबेंचर के लिए 100 और ऊपर से वो इंटरेस्ट पे करने वाला है 2.5 रुपीज टू ए। सो डिबेंचर की वैल्यू कितनी लिखूं मैं, 100 लिखूं या 102.5? प्लीज अंडरस्टैंड दिस विल बी ओनली 100। वाई? कॉस्ट मतलब क्या होता है, वो चीज हमें कितने में पड़ी, हमारा खर्चा कितना हुआ। अगर आप ये ठीक से समझ के लोगे तो क्या होने वाला है, ये जो इंटरेस्ट बी ए को दे रहा है 2.5 रुपए का, वो उसे वापस मिल जाएगा। कब वापस मिल जाएगा, 31 मार्च को। 31 मार्च को क्या होगा, 31 मार्च को बी के पास डिबेंचर होंगे। ओके, और वो डिबेंचर पे बी को इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बी को इंटरेस्ट मिलेगा पूरे 6 महीने का, यहां से यहां तक का, 6 मंथ्स का, राइट? बिकॉज जो कंपनी के ये डिबेंचर्स है उसने इंटरेस्ट पे किया था पहले 31 सितंबर को, अब वो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी 31 मार्च को। 31 मार्च को वो डिबेंचर किसके हाथ में है, बी के हाथ में, इसलिए ये 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा किसे, बी को, राइट? अभी तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट अभी बी ए को दे देगा और 31 मार्च को ये 3 महीने का इंटरेस्ट उसे वापस मिल जाएगा। तो क्या वो इंटरेस्ट उसके लिए खर्चा है? सो नहीं, इट इज नॉट कॉस्ट फॉर बी, and that is why whenever I will record this investment in the books of B, the value of it will only be 100, because this 2.5 rupees B is going to recover again, and if he is going to recover this again, it is not going to be his cost. Clear? So now debenture account debit 100. Then what he'll do is he'll record interest account debit 2.5, राइट? एंड टू बैंक, उसके बैंक में से पैसे चले जाएंगे 102.5. इज दिस क्लियर? नाउ व्हाई डिड आई डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट? आई टेल यू. ओके, आफ्टर सम टाइम आई विल गिव यू दिस लॉजिक ऑल्सो दैट व्हाई इंटरेस्ट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट डज कम इंटरेस्ट मीन्स. सो एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है कि वो प्राइस सिर्फ डिबेंचर के लिए है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो बंदा अलग से देगा. तो ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस मतलब वो एसेट की कॉस्ट होती है और इंटरेस्ट अलग से पे होता है. अब अलग, द सेम ट्रांजैक्शन कैन बी पुट इनटू अनदर वर्ड्स. दे कैन से दैट बी परचेस्ड डिबेंचर्स फ्रॉम ए एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 102.5 कम इंटरेस्ट. मतलब इस केस में वो आपको क्या बताएंगे, इस केस में वो बताएंगे कि बी ने ए से डिबेंचर खरीदा और कितने रुपए में खरीदा, 102.5, एंड दिस इज कम इंटरेस्ट. इसका मतलब होता है कि ये जो प्राइस आपको दी हुई है वो प्राइस में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है. क्लियर? सो व्हेनेवर यू वुड बी गिवन कम इंटरेस्ट प्राइस, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट सेपरेट करना पड़ेगा.
बिकॉज जब आप बी के बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री मारोगे आपको डिबेंचर रिकॉर्ड करना है कॉस्ट पे, और कॉस्ट में इंटरेस्ट आता नहीं है, इसलिए जब आपको कम इंटरेस्ट प्राइस दी जाती है यू विल हैव टू स्प्लिट दैट प्राइस इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज हाउ मच अमाउंट इज एक्चुअली पेड फॉर डिबेंचर्स and how much amount is paid for interest. Clear? So come interest price is such a price which includes both price for the debenture for that asset and plus the price for the interest, right? And for this, for accounting we will have to separate. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे बताया गया है प्रॉब्लम में कि प्राइस कम इंटरेस्ट है तो क्लिक होना चाहिए I will have to separate this. इसमें का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो अलग कर दो और डिबेंचर्स का कंपोनेंट अलग कर दो. अब हमने कैलकुलेशन कर दिया था इसलिए हमें पता है कि इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है 2.5. सो मैं इधर लिख दूंगी इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट 2.5 है और डिबेंचर का कंपोनेंट कितना है 100. ओके, नाउ वंस यू सेपरेट दिस फ्रॉम द कम इंटरेस्ट प्राइस, जब आपने इंटरेस्ट और डिबेंचर की वैल्यू अलग कर दी है अब फिर से यू विल पास द सेम जर्नल एंट्री, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक. क्लियर? तो कम इंटरेस्ट में आपको सिर्फ एक एडिशनल स्टेप करना पड़ता है कि आपको वो प्राइस में से इंटरेस्ट कंपोनेंट हटा देना है. क्यों? क्योंकि जब आप एसेट रिकॉर्ड करोगे एसेट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करनी है और इंटरेस्ट बी के लिए कॉस्ट नहीं है क्योंकि 31 मार्च को वो उसे वापस मिल जाएगा. इज दिस क्लियर? राइट. नाउ लेट्स सी वन मोर थिंग. ऑन 31st March, now what is going to happen? On 31st March, B will be the holder of that investment. He is the owner of that investment. And on 31st March, the interest on debenture for 6 months will be received by B. तो B को 6 महीने का इंटरेस्ट अभी रिसीव होगा क्योंकि 31st मार्च को वो डिबेंचर B के पास है और लास्ट कंपनी ने इंटरेस्ट कब दिया था 31st सितंबर, इसलिए अभी उसे पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा. सो एज वी वर डिस्कसिंग ऑन 31st मार्च B इज गोइंग टू रिसीव इंटरेस्ट, राइट. नाउ ये इंटरेस्ट की एंट्री B के बुक्स में क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 5 रुपीज एंड 5 रुपीज. सो 5 कैसे आया? 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कितना मिलता है 5 रुपीज, क्योंकि पूरे 1 साल के लिए इंटरेस्ट रेट कितना है 10%. 10% ऑफ 100 इज 10 रुपीज. सो फॉर 6 मंथ्स इट बिकम्स 5 रुपीज. सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट में बी के पैसे आए हैं. इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, credit all incomes and gains. This interest is income for B and that is why interest account has been credited. Okay, now I'll tell you the logic why here interest account was debited. See, please try and understand. B के लिए B ने रिसीव किया है इंटरेस्ट 5 रुपए, लेकिन वो पूरे 5 रुपए B की इनकम नहीं है. क्यों? क्योंकि B ने डिबेंचर खरीदा ही कब था 31 दिसंबर को. तो अगर बी ने डिबेंचर खरीदा ही 31 दिसंबर को है मतलब उसने पैसे कितने महीने के लिए लगाए हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च. तो अगर उसने पैसे ही 3 महीने के लिए लगाए हैं तो उसे 6 महीने का इंटरेस्ट कैसे मिलना चाहिए? उसे इंटरेस्ट कितने महीने का मिलना चाहिए? सिर्फ 3 महीने का. सो ये जो भी 5 रुपए का उसका इनकम हमने इनकम अकाउंट को क्रेडिट किया है वो पूरे 5 रुपए उसकी इनकम हो ही नहीं सकती है. उसकी इनकम सिर्फ 3 महीने के लिए है. सो दैट इज वाई व्हाट आई डिड वाज, जब हमने ए को 3 महीने का इंटरेस्ट पे किया था, मतलब ये क्या हुआ, ये 3 महीने का इंटरेस्ट बी ने ए को पे कर दिया था क्योंकि वो बी की इनकम नहीं है. ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो बी की इनकम है. सो अभी क्या होगा, जब बी ए को पे कर देता है ये 3 महीने का इंटरेस्ट, तब हम इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं. क्यों? इसका लॉजिक यही है
कि जब बी को पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा तो बी वो पूरे 6 महीने की इंटरेस्ट दिखाएगा इनकम करके, राइट। लेकिन वो 6 महीने में से 3 महीने का इंटरेस्ट मुझे काट डालना है क्योंकि वो बी की इनकम है ही नहीं। इसलिए जब बी ने ए को 3 महीने का इंटरेस्ट पे किया तब मैंने इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर दिया, ओके, बिकॉज डेबिट कट्स क्रेडिट। सो हियर व्हाट डिड आई शो? So I showed that I received an asset of rupees 100. Okay, I paid 2.5 for the interest and now I debited interest account because जब 31st मार्च को मुझे पूरा इंटरेस्ट मिलेगा तो मैं वो पूरा इंटरेस्ट इनकम करके रिकॉर्ड करूंगी, राइट। और जब मैं ए को पे करूंगी तब मैं ये इंटरेस्ट डेबिट कर दूंगी। सो नाउ व्हाट इज द नेट इम्पैक्ट? यहाँ इंटरेस्ट 5 रुपए से क्रेडिट हुआ है, यह इंटरेस्ट 2.5 रुपीज से डेबिट हो गया है। सो फाइनली उसका मतलब इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए से हुआ है? 2.5, which means that ultimately B recorded income of 2.5 in his books, that is interest of 3 months, which is actually his income since he had invested the money in debenture for only 3 months. Clear? So that is why whenever you are going to purchase debenture or any, for that matter of fact, fixed income bearing security, and when you are going to pay interest, जब खरीदते वक्त आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जैसे बी ने ए को पे किया था ये 3 महीने के लिए, तब वो हम इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, राइट। और फिर जब हमें पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा तब हम उसे क्रेडिट कर देंगे। इसका सिंपल रीजन ये हो जाएगा कि पूरे 6 महीने का पहले इनकम करके रिकॉर्ड किया, जिसमें से 3 महीने तो हमने ए को पे कर दिए क्योंकि वो हमारी इनकम ही नहीं थी, तो वो 6 महीने के इंटरेस्ट को ये 3 महीने का इंटरेस्ट काटेगा बिकॉज वी हैव पेड दैट ऑफ, एंड फाइनली बी के बुक्स में इंटरेस्ट बचेगा सिर्फ इनकम करके 3 महीने का। क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, and how will you do accounting in the books of investor. Please understand here I have not covered what would be accounting entries in the books of A. A के बुक्स में जब वो ये डिबेंचर बेचता है तो उसकी एंट्रीज क्या होगी, that I have not covered in this video. In this video I have only covered that what would be accounting in the books of investor if he is purchasing a fixed income bearing investment, what is X interest, what is cum interest, what are accounting entries, and what is logic behind it. I hope this video was useful for you. Thank you.